और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने मरकज और मिलिटेंटों के बीच रास्त मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। पठानकोट में मीडिया से बात करते हुए फौजी सरबराह ने कहा कि रियासत का सरबराह मिलिटेंटों के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकता और ऐसा मुमकिन नहीं है। जनरल बिपिन रावत ने कश्मीरी अलहदगी पसंदों पर जोर दिया कि वह मरकजी हुकूमत की जानिब से तकर्रुर करदा मुज़ाकरातकार से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि मरकजी मुज़ाकरातकार तमाम मुतालिका फरीकैन से बातचीत कर रहे हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि मुज़ाकरातकार किसी के साथ भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात की मेज पर आने का ख्वाह नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क करके अमन व तरक्की के अमल में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि गुमराह नौजवानों को वापस लाने की कोशिश भी की जा रही है। रावत ने कहा कि नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल होने से बचाने की भी कोशिश है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद का रास्ता जारी रखने वालों का अंजाम उनका खात्मा होगा। फौजी सरबराह ने सरहद पर मौजूदा हालात पर भी बात की। If you look at the government policy, we've got a very clear-cut policy that we will not allow terrorists to create violence in our society, and therefore anybody who creates violence will be neutralized. At the same time, an interlocutor has been tasked by the government to speak to various people in the valley. So I don't understand as to what are we trying to say. There is an interlocutor. Mr. Sharma is moving around talking to people. He's saying I am open to everybody. Anybody who wants to speak to me, come and speak to me. So I haven't understood who says the talks are not going on. Mr. Sharma is the government interlocutor to talk to these people. If they don't want to listen to him and they don't want to approach him, then I don't know where further can we go. So we are doing indirect talks to see if we can approach the stakeholders to send a clear message to them. But to say that the head of the state will come and talk to these terrorists, I don't think that is going to happen. Everywhere we are talking to interlocutors, they keep talking, taking the example of the northeastern states. In the northeastern states also there is an interlocutor. Mr. Ravi is the interlocutor with the Naga insurgent group, and Mr. Sharma is the interlocutor with all the groups in J&K. So what makes us think that necessary action by the government is not being taken to bring people into the mainstream? नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखना है कि कितने लोग सरहद पार से हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट करने में सक्सेसफुल होते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए और उसमें हम लोग काफी हद तक सफल हुए हैं। ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं, लोकल टेररिस्ट हैं, ये ट्रेंड भी नहीं है। इनको बस जैसे मैंने बताया, रेडिकलाइजेशन के जरिए, डिसइंफॉर्मेशन के जरिए इनको टेररिस्ट रैंक में ज्वाइन कराया जा रहा है। ट्रेनिंग इनके पास है नहीं और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इनका खात्मा हो जाता है। तो अगर ये लोग सही तरीके से समझ जाएं कि दे आर ओनली बीइंग यूज्ड एज कैनन फॉडर, इट इज बेटर टू शन वायलेंस एंड कम अबव द ग्राउंड एंड कम टू द मेन स्ट्रीम. There will be peace in the valley, there will be development, there will be more jobs. Everything that they are looking for will come in if peace comes to the valley. You see, sniping has been a regular affair. It's nothing new in this. The Pakistani army has got snipers and we have got snipers. So whenever you get an opportunity and you find that there is little bit of exposure by any soldier anywhere, sniping will happen. So we have got to make sure that our drills are good. We don't give them the opportunity. And we also have our snipers ready to snipe at him. And why just snipers? We should be able to hit him harder. फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट ने कहा कि खनियार श्रीनगर के एहतशाम बिलाल सूफी की ISIS में शमूलियत की तस्दीक होना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि हकायक जानने की कोशिश जारी है। भट्ट ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑल आउट नाम का कोई ऑपरेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि मकामी मिलिटेंट चाहें तो ऑपरेशन के दौरान भी खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर सकते हैं। भट्ट ने शारदा यूनिवर्सिटी में 4 अक्टूबर को एहतशाम समेत 2 कश्मीरी तलबा के साथ पेश आए वाक़े पर कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। पहली बात तो इसका कंफर्मेशन नहीं है कि उसने ISJK ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। हम इस मैटर को अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पर मेरी अपील जैसे कि हमेशा कश्मीर के यूथ को रहती है कि आप अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए हम इंडिया के मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिए और जैसे कि भारत आगे बढ़ रहा है आप भी उसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए। मेरी तो ये अपील होगी कि जहां भी हमारे बच्चे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ रहे हैं
उनका खास ख्याल रखा जाए। मैं पहले आपको फिर एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ऑल आउट नाम का कोई ऑपरेशन नहीं है। हम जहां भी टेररिस्ट हथियार उठाएगा उस हथियार को उस टेररिस्ट को नकारा करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे। पर साथ ही जवान लड़कों को, और जो खासकर कश्मीर के जवान लड़के हैं, वो ऑपरेशन के दौरान भी अगर अपने को सरेंडर करना चाहेंगे तो हम उनको मौका देंगे। अभी तक की जो बर्फ है उससे ये अंदाजा लगाना कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा ये मैं कह नहीं सकता हूं, पर निश्चय ही अभी कोशिशें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना का कहना है कि पाकिस्तान बौखलाहट में सरहदों पर बिलाइश्तियाल फायरिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान स्नाइपरों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान को ऐसी हरकतों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से बार बार एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर एक साजिश की जा रही है कि स्नाइपर शॉट करके भारतीय जवानों को टारगेट किया जा रहा है। दूर से स्नाइपर राइफल से निशाना लगाने की एक साजिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और भारतीय सेना के जवानों ने इसका जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जो राजौरी सेक्टर है और केरी सेक्टर है, नौशहरा सुंदरबानी का जो एलसी का एरिया है, यहां पाकिस्तान ने इस प्रकार का दुस्साहस किया है। तो इसका जवाब बड़े जबरदस्त तरीके से हमने दिया है। हमने पाकिस्तान की बहुत सारी आर्मी की पोस्ट, रेंजर्स की पोस्ट हमारी आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दी है, तबाह कर दी है और हम पाकिस्तान की दुस्साहस को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान साजिश कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, ऐसा मेरे को आभास हो रहा है। खबर अनंतनाग से है, जहां के बुलबुल नौगाम इलाके में गुज़िश्ता रात चंद शरपसंदों ने वहां पर कायम पंचायत घर को आग लगा दी। इस वाकये में पंचायत घर पूरी तरह तबाह हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। पंचायत घर में मौजूद सामान और जरूरी दस्तावेजात आग की नजर हो गए। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में एक सड़क हादसे में 21 स्कूली बच्चों को चोटें आईं। इन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक लदरू से आ रही आर्मी गुडविल स्कूल पहलगाम की एक स्कूल बस नुनवन के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलट गई। यह हादसा दरियाए लिदर के नजदीक पेश आया। ताहम मौजिजाती तौर पर बस में सवार सभी तालिबे इल्म बच गए। शदीद तौर पर जख्मी 7 तलबा को अनंतनाग के जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर ली हैं। हम जब स्कूल से आए तो वहाँ पर एक टूरिस्ट गाड़ी आ रही थी, उसने उसको साइड लेने की कोशिश की, उसने ओवरटेकिंग किया, वो गाड़ी के ऊपर से गया, वो गाड़ी फिसल गई और नीचे गई। लगभग 3 बजे बांडीपुरा में महकमा सेहत में काम कर रहे रेगुलर और एनएचएम मुलाजमीन के गैर कानूनी अटैचमेंट का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अगरचे महकमा सेहत ने इन मुलाजमीन की डी अटैचमेंट को लेकर मुतअद्दिद बार हुक्मनामे और सर्कुलर जारी किए, ताहम इन अहकामात पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जराये के मुताबिक बांडीपुरा और गुरेज के साथ साथ दूसरे ब्लॉकों में काम कर रहे कुछ मंजूर नजर मुलाजमीन की अटैचमेंट आज भी बरकरार है। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बिल्किस मीर का कहना था कि उन्होंने इस मामले में पहले ही सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से हम देखेंगे, अगर कोई कहीं है तो उसको हम वापस भिजवा देंगे, लेकिन हमने भिजवाया है। मेरी नजरों में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी ड्यूटी पे अपनी जगह पे नहीं गया है तो वैसे नहीं, तो अगर कोई होगा भी तो ही गो इमीडिएटली। मैंने तो ऑर्डर निकाल दिया है, उसकी सैलरी बंद की जाएगी, उसको अंडर सस्पेंशन रखा जाएगा अगर वो नहीं जाता है, इफ ही इज रिलेक्टेंट। कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए पीएम रिलीफ पैकेज के तहत तकर्रियों के लिए खत्मी फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 3 माह से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि SRO 412 में कोई रोक नहीं लगी है, फिर भी हुकूमत हतमी फहरिस्त जारी नहीं कर रही है। पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज गवर्नर हाउस के सामने हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया पुलिस जी ने, हमें उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया।
अब हमने पीसफुली छोड़ दी है, आज हमने रैली निकाली है। अगर आप हमसे ऐसे ही उम्मीद रखेंगे कि हम पीसफुल होंगे तो पीसफुल नहीं चलेगा। हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने दिखाया इन्हें पीसफुली सब कुछ किया है हमने। लेटर दी अपॉइंटमेंट के लिए ग्रीवो सर में, सब कुछ जो बोला इन्होंने पिछले 3 महीने से हम लोग वही कर रहे हैं जैसे ये बोल रहे हैं। आज हम गवर्नर सर को कह रहे हैं होश में आइए और हमसे मुलाकात कीजिए, अपने ब्यूरोक्रेसी डिपार्टमेंट को पूछिए कि लिस्ट बंद क्यों है। तारीखी मुगल रोड पर पीर की गली के मकाम पर ताजा बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर आज सुबह शोपियां से ट्रैफिक की नकलो हमल को मुअत्तल किया गया है। हिरपुरा से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। पीर की गली और इसके मुल्हिका बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया शोपियां ने मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। अफसर ने फैसला लिया है वहाँ वो पुलिस से भी और यहाँ से भी, तो इसका मकसद ये है कि किसी का जानी माली नुकसान न हो पाए, कोई गाड़ी ना फंस जाए। भी पता नहीं कितने दिन के लिए भी आज भी प्रोडक्शन है, आज भी बारिश बर्फबारी का इम्कान है, कल भी है, परसों तो ज़्यादा ही है। इसलिए हमने पहले ही मगर रोड को आवाजाही के लिए बंद कर दिया। उधर बडगाम जिले में मुमकिना बर्फबारी से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम कर लिए गए हैं। एडीडीसी बडगाम खुर्शीद अहमद ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बडगाम जिले की अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी को तैयार रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस जिम्न में तमाम मुतालिका ओहदेदारों के इजलास भी मुनक्किद किए गए हैं। जो हमारा ये फॉरेस्ट बेल्ट आता है, जो यहाँ इधर यूसमर्ग से उधर वाया दूध पथरी, फिर ये उधर तोस मैदान तक पहुंचता है। ये पूरा फॉरेस्ट बेल्ट यहाँ ये स्नो प्रोन एरिया है, यहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इन फॉरेस्ट एरिया में कहीं स्नोफॉल हो जाता है तो वी आर ऑल प्रिपेयर टू टैकल द सिचुएशन। मशीनरी पूरी हमारी इन स्टेट ऑफ रेडीनेस है, तो जो भी इसमें लवाजमात है वो हमने पूरे कर रखे हैं एज पर जो कोडल प्रोसीजर इसका है। तो वी आर ऑल प्रिपेयर टू डिलीवर ऑन ग्राउंड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आरएनपी, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स उनको भी कह के रखा है कि किस तरह आपको कौन कौन से अरेंजमेंट्स रखने इन प्लेस। वो इंशाल्लाह हम तैयार हैं उसको फेस करने में, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। जिला शोपियां में भी लोग मौसम सरमा की तैयारियों में जुट गए हैं। कस्बा शोपियां के बाजारों में लोग कांगड़ियों और गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। देही इलाकों में लोग कोयला बनाने के काम में मशगूल हैं। बालाई इलाकों के रहने वाले लोग सर्दियों के लिए सब्जियां भी स्टोर कर रहे हैं। हालिया बर्फबारी के बाद जिला शोपियां के कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी काफी मुतासिर हुई है। मेंबर असेंबली शोपियां एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट और सीनियर एनसी लीडर शेख मोहम्मद रफी ने मुतालबा किया है कि जिले में बिजली सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। हमें 1 महीने पहले ही करनी पड़ी अब, तो इसकी वजह से यहाँ बहुत सर्दी है, तो हमें इस वक्त हम तैयार नहीं थे मौसमी सरमा का मुकाबला करने के लिए। तमाम लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। इस वक्त कांगड़ी लेनी पड़ी है, इस वक्त कोयला नहीं था, अभी सेब वगैरह बागों में ही थे, तो 1 महीने पहले लगभग 1.5 महीने पहले बर्फ ही गिरी, तो इस वक्त हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सर्दी है, पावर नहीं है। कुपवाड़ा जिले में बागबानी शोबे से वाबस्ता लोग महकमे से नाला है। लोगों का कहना है कि हालिया बर्फबारी से मेवा बागात में भारी तबाही मच गई है। इनका इल्जाम है कि महकमे बागबानी ने अभी तक इन इलाकों में टीमें रवाना नहीं की हैं। अगरचे कई इलाकों में पहले दिन टीमें रवाना हुई, लेकिन दूर दराज इलाकों में अभी तक नुकसान का तखमीना नहीं लगाया गया है। लोगों का इल्जाम है कि कुपवाड़ा जिले में बागबानी महकमे के अफसरान सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। लोगों ने मुतालबा किया कि इन्हें किसान लोन माफ किए जाएं। प्रॉब्लम गई कर्ज नख वलित कह चीज टीम गई प्रत कुछ जाए योर आय ना कहें गवर्नमेंट डीसी साहबस गवर्नर साहबस अपील कर योर टीम लगान इनका अंदाज पता नुकसान गुमुत। गवर्नर साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से अपील करते हैं, जो हमने बैंकों से कर्जे उठाए हैं, चाहे केसीसी चाहे कोई और, तो उसमें हमें अगर वो माफ किया जाता तो हम जमींदार भी बच जाते। हमारा सब कुछ इन बागों पर ही होता है। हम आपकी चनों की वसादत से कहना चाहते हैं कि इस पर अगर हमें कुछ जल्दी हो जाएगा तो हम शुक्रगुजार होंगे गवर्नर साहब के। जिला रामबन के बैटरी चश्मा ट्रक हादसे के लवाहिकीन ने आज जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह को बंद करके तामीराती कंपनी और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तामीराती कंपनी और ठेकेदारों की मनमानी की वजह से मलबा हटाने के लिए भेजी गई मशीन को जाए मौके पर पहुंचाने में
ताखीर हो रही है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लवाहिकीन का कहना है कि इनके घरों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से पूरा खानदान परेशान है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि दबे हुए लोगों को निकालने में तरजीहाती बुनियादों पर इनकी मदद की जाए। 25 के हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ इधर 6 तारीख के हम इधर आए हुए हैं। अभी 7 दिन हो गए हमको। हम ना रोड पे आके सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। ना खाने का पीने का हमारा कोई प्रबंध है, ना कोई ऐसे। हम गुरुद्वारे से में रह रहे हैं, हमारे को कोई देख नहीं रहा। अफसर आते हैं, सभी आते हैं, चलो सहयोग देते हैं, ऐसी बात नहीं है। सुबह आते शाम को घर चले जाते हैं। अभी हम बोलते हैं अभी कोई बंदा कुछ बताए, बंदे नीचे भेजते हैं, बंदे का काम कोई नहीं है नीचे, क्योंकि जब तक मशीन नहीं पहुंचेंगे रोड बंद करने के बाद ही काम शुरू होगा। तो यहाँ हमारे ऐसे काम होगा। हम तो यही बोलते हैं सरकार से कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिया जाए। हम बस हमारे को डेड बॉडी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। बस सिस्टर है, उसने इम्तिहान मेडिकल का देना था, इसलिए डिप्रेशन की वजह से वो पेपर नहीं दे पा रही। सिख तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने आज श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने एसआरओ 425 और मरकजी मुलाजिमतों में रिजर्वेशन को मनसूख करने का मुतालबा किया। मुख्तलिफ गुरु प्रबंधक कमेटियों की जानिब से यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि सिख तबके के साथ नाइंसाफी और इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हमारे कम्युनिटी के साथ हो रही है रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो एक्सटेंड किया गया नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स जो इस वादी में रह रहे हैं, और हमें इस एक्सटेंशन में एम्प्लॉयमेंट पैकेज के एक्सटेंशन में टोटली इग्नोर कर दिया गया। हालांकि हम भी सिख कम्युनिटी के तौर पे यहाँ से हमने कोई अप्लाई नहीं किया, कोई माइग्रेशन नहीं की, मगर उसके बावजूद भी जो ये 425 है इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी को मखसूस तौर से दिया जा रहा है, जिसका हम पर जोर मजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक तरीका है हमारे यहाँ से पलायन का, ताकि हमें रोजगार के जो मुवाफिक हैं वो ना मिले और हम यहाँ से पलायन कर जाएं। श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरी प्ले खरकल की पेशकश के साथ ही हफ्ता तवील ड्रामा फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। खरकल ड्रामे को डॉक्टर सोहन कौल ने तहरीर किया है और हसन जावेद ने इसकी हिदायतकारी की, जबकि फिरदौस ड्रामेटिक क्लब ने इसे पेश किया। इस ड्रामे के जरिए यह पैगाम दिया गया कि हम खुद की सोचने की आजादी खो चुके हैं और अपने मुताबिक कुछ करने से कासिर हैं। कल्चरल एकेडमी की जानिब से इस ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इसका मकसद रियासत की सकाफत और फोक आर्ट्स को फरोग देना और साथ ही थिएटर आर्टिस्ट के टैलेंट को उभारना है। इंतकाल जो सपदमुत तिमन बचुस रियासती कल्चरल एकेडमी हिंदी तरफ तिमन वत्सवंगी खराज इज्जत पेश करान तिम इंदिस याद रोई बोन के आज ये फेस्टिवल आखिरी ड्रामा तिमन शाबाशी दिन खतर करजल ड्रामा खरकल दुकुन पत्थर सिक आद पानु छुनु कुनी वही मैं बोलमुत आसिया खबर का पैसा की कहानी थी, एक ऐसे प्रोफेसर की कहानी थी जो चाहता था कि ये जो सारा माहौल है मतलब हमारी वजह से ठीक क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों नहीं इस पे बात कर रहे हैं। अगर हम चाहते थे कि हम यहाँ से जाएं तो हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। तो ये प्ले उसी प्रोफेसर सीन पे था जो डॉक्टर सोहनलाल कौल साहब ने लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आज़ादी, हमारी जो सोचने की आज़ादी हमारी खो चुकी है। हम वो आज़ादी जो हमें हमारी सोच की थी वो बंद हो चुकी है। हम अपनी इजाज़त से, अपनी सोच से, अपने हिसाब से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये उसी पे आज का जो प्ले था खरकल, ये एक ऐसा कैरेक्टर जो था, आपने देखा होगा कि प्रोफेसर बोलता है कि मुझे गधे का ये सर लगा लो, क्योंकि ताकि मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब मेरी सोच से, मेरे दिमाग से, मेरी मर्जी से कुछ हो ही नहीं रहा है। स्वस्थ भारत यात्रा के जिम्न में महकमे फूड सेफ्टी की जानिब से श्रीनगर में एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में दर्जनों अफराद ने हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान लोगों को जंक फूड से परहेज करते हुए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की तरगीब दी गई। साथ ही खाने पीने की अशिया को ज़ाय न करने का पैगाम दिया गया। इसका मकसद ये है कि लोगों में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उससे हमें मुक्ति मिले, उससे हमें निजात मिले। एक जो रिसर्च एक सर्वे हो गई उसमें यह पाया गया कि 1/3 में से बच्चा जो हमारा है वो ओबेस है। ओबेस क्यों है? क्योंकि जो बच्चे आज जो जंक फूड खाते हैं, जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो ओबेस हो रहे हैं। तो मकसद ये भी है कि जो हम इसमें स्लोगन दे रहे हैं कि ईट राइट, ईट न्यूट्रिशियस और डोंट वेस्ट फूड। हम देश में हम जो खाना खाते हैं उसके साथ हमारा सेहत जुड़ी हुई है। तो हम ये जो खाना खाते हैं ये सेफ है,
हाइजीनिक है और पौष्टिक है, ये हमको खुद को ही ख्याल रखनी है। सरकार से इसकी एनफोर्समेंट है। हैदरबेग पैटर्न में कायम फौज के 10 सेक्टर के जोरावर हॉल में आर्मी गुडविल स्कूलों का सालाना फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। फेस्टिवल में काफी तादाद में बच्चों और इनके वालिदैन ने शिरकत की। बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा गया। जनरल ए.के. भट्ट ने कहा कि वादी के बच्चे दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अर्जेंटीना में मुनक्किदा किक बॉक्सिंग मुकाबलों में कश्मीरी खिलाड़ियों ने 3 मेडल लेकर मुल्क और कश्मीर का नाम रोशन किया। तकरीब में फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इनको देखने में, इनके स्टैंडर्ड्स को देखकर ये जरूर लगता है कि कश्मीर का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। जिस प्रकार की एजुकेशन इन बच्चों को मिल रही है और जिस प्रकार से इसको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये एक जाहिर करता है कि हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ बच्चे जो अर्जेंटीना में किक बॉक्सिंग कंपटीशन में गए थे, वहां से इंटरनेशनल कंपटीशन में 3 मेडल लेके आए हैं और इन 3 बच्चों ने कश्मीर का नाम और इंडिया का नाम बहुत ऊंचा किया। रियासती कल्चरल एकेडमी की जानिब से जम्मू में अभिनव थिएटर के सब्जाजार पर रंग उत्सव का इनेकाद किया गया। इस उत्सव में मौसीकी, रक्स और ड्रामे का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला। जम्मू खित्ते के कई फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और हाजिरीन को खूब महसूस किया। कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अजीज हाजिनी का कहना है कि दरबार मूव की मुनासबत से इस रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आज हमने यहाँ जम्मू में विंटर सीजन की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनका आगाज़ किया और एक अच्छे अंदाज से ये आगाज़ हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे विंटर के दौरान कोई भी दिन ऐसा ना हो जब यहाँ एक मेगा एक्टिविटी ना हो, और न सिर्फ जम्मू शहर में बल्कि पूरे जम्मू प्रोविंस में आर्टिस्ट के लिए ये अहम होता है कि उसको एक मंच मिले, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। तो हम ये कोशिश करेंगे। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक आज रियासत भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आस्ताने आलिया वाक़ ख्वाजा बाजार मोहट्टा श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज के दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। वादी के मौजूदा हालात का तस्करा करते हुए मौलवी उमर फारूक ने मुबैना तौर पर इंसानी हुकूक की ज्यादतियों की मजम्मत की। इस दौरान खराब मौसम के बावजूद काफी तादाद में अकीदतमंदों ने नमाज असर अदा की। डीसी बारामूला डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने जिले में मवेशियों की टीकाकारी मुहिम में ताउन करने की आवाम से गुजारिश की है। डीसी ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान मवेशियों को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महकमे एनिमल हस्बेंड्री की टीम घर घर पहुंचकर अपनी सरगर्मी अंजाम देगी। पूरे बारामूला जिले में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको कश्मीरी में अस्नूर भी कहते हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसकी मुख्तलिफ टीमें लोगों के घर घर जाएंगी हर तरफ से और ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस सिलसिले में यहाँ पर ये जो हमारे लोग हैं, जमींदार हैं, फार्मर्स हैं, उन सबको मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि वो जो एनिमल हस्बेंड्री की टीमें हैं उनके साथ पूरा ताउन किया जाए, उनका साथ दिया जाए, ताकि एक तरफ से हम जो फुट एंड माउथ डिजीज है उसका खात्मा कर सके। डोडा जिले के कास्तीगढ़ में सड़क खस्ताहाली के शिकार है। कास्तीगढ़ से सारस जाने वाली सड़क की तामीर का काम साल 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे मुकम्मल नहीं किया गया। सड़क पर मैकडम न होने से हर वक्त धूल उड़ती रहती है। मकामी लोगों का कहना है कि कई मरतबा मुताल्लिका महकमे की तवज्जो इस मसले के जानिब कराई गई, लेकिन कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। लोगों ने इलाके का ड्रेनेज निजाम भी खराब होने की शिकायत की।
2009 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, तो 2 साल पहले इसको ये जो है इसको रूढ़ी वगैरह जो भी बोलते हैं ये डाली गई मेटलिंग। और 2 साल पहले जब काम स्टार्ट हुआ था मेटलिंग का, उन्होंने बोला था कि अगले 6 महीने के अंदर हम आपको ब्लैक टॉप करके देंगे, लेकिन वो 6 महीने भी बीत गए। तो हम आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस रोड की जो ब्लैक टॉपिंग का काम है कम से कम कास्तीगढ़ तक तो क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ से अगर डोडा हॉस्पिटल जाना होता है तो बहुत दिक्कत आती है। कम से कम कास्तीगढ़ तहसील हेडक्वार्टर तक ये इसको कंप्लीट करें, लेकिन इसका काम ढीला पड़ा हुआ है और कभी मशीन लगाते हैं ये। हमने इनको कई बार बोला कि इसकी पक्की ड्रेन बनाकर तो इसको कंप्लीट कीजिए, तो ये मशीन लगाते हैं, मशीन के साथ थोड़ा सा ये कच्ची ड्रेन बनाकर तो चले जाते हैं।